جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، پرابلم اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ میں شروع سے ہی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ خیر کافی سال اسی چیز میں گزر گئے۔ اب سے تقریباً 7-8 سال پہلے مجھے پیٹ میں ایسے درد ہوا اپینڈکس کی سائڈ پہ۔ تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی، پہلے تو میں نے اس کو اگنور کیا، اور پھر اس کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے یہ بولا کہ ان کا آپریٹ ہوگا، کیونکہ ان کے جسم میں تھیلیاں بن چکی ہیں بلڈ کی اور پانی کی۔ خیر پہلے تو تشخیص ہی نہیں ہوتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے اصل میں۔ کافی ٹائم بعد جب تشخیص ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ پرابلم کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، اب ہمیں آپریٹ کرنا ہوگا۔ خیر ڈاکٹرز نے آپریٹ کیا، اور کچھ دن بعد انہوں نے میری مدر کو یہ کہا کہ اس کا ابھی جو اصل مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر رسولیاں ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جڑ والی رسولیاں ہیں یا ویسے خالی رسولیاں ہیں۔ اس کا ہم نے سی ٹی اسکین وغیرہ کروانا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا، تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کا آپریٹ ہوگا۔ اور آپریٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ مطلب یا تو بار بار کروانے پڑتے ہیں یا ایک بار سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خیر ہم ہاسپٹل سے واپس گھر آئے، اور کچھ دن بعد میں جب سی ٹی اسکین کے لیے گئی تو میری رپورٹ کلیئر آئی، میری رپورٹ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی میں ایک دن رات کو اپنی مدر کے ساتھ آپریٹ کے کچھ 2-3 دن بعد، بلکہ جب میں ابھی ہاسپٹل میں تھی تو میں اپنی مدر سے کہتی تھی کہ مجھے دیواروں پر شکلیں نظر آتی ہیں، تو میری مدر مجھے کہتی تھی تم فارغ ہاسپٹل میں لیٹی رہتی ہو اس لیے تمہیں ایسا لگتا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہوتا، اور اس طرح کی چیزیں نا۔ انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا۔ پھر ایسے ہی کچھ دن بعد میں اپنی مدر کے ساتھ رات میں لیٹی ہوئی تھی، اور میں ان سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک مجھے دیوار پر ایسا محسوس ہوا کہ کوئی عورت جو ہے وہ بول رہی ہے، یا وہ سر ہلا رہی ہے، یا اس طرح کی چیزیں نا، اور اس نے کافی اونچا جوڑا کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی امی کو بتایا، میں نے کہا امی جی وہ دیکھیں وہ عورت مجھے نظر آ رہی ہے۔ خیر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی، مجھے اکثر چیزیں نظر آتی تھیں، مجھے آوازیں آتی تھیں، کوئی بار بار میرا نام لیتا تھا، مجھے بلاتا تھا، اور پھر اس طرح سے ہونا شروع ہوا کہ میری شروع سے ہی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی اچھی نہیں بنی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں شروع سے بیمار رہتی تھی، اور میرے فادر اتنا ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے۔ شروع سے کافی سال جو ہے میری فیملی میں سے کسی نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں ہے کہ ایسے پرابلم ہوتے ہیں۔ ایک میری مدر تھیں، وہ بھی کچھ ٹائم بعد آ کر جب زیادہ پرابلمس ہونی شروع ہوئی تب وہ کچھ ٹائم بعد اس چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، اور میرے بہن بھائی اور میرے فادر جو ہیں انہوں نے تقریباً 1.5 سال 2 سال ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے۔ پھر اس طرح سے ہونا شروع ہوا کہ میں نے علاج وغیرہ کروانے شروع کیے، تو انہوں نے وہی ہانسیاں کرنی، اذیتیں دینی، انگلیوں میں پینسلیں ڈال کر انگلیاں دبا دینی، یا ہانسیاں کروانی، یا جب ہانسی ختم ہو جانی تو میں نے کہنا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے میں ہی ہوں، تو انہوں نے اس چیز کو ماننا ہے نہ، انہوں نے کہنا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر جن ہے۔ میرا نام چینج کر دیا میرے گھر والوں نے کہ شاید نام کی وجہ سے کوئی اثر ہو۔ خیر وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ میں اسکول پڑھتی تھی، میری بہت زیادہ چھٹیاں ہوتی تھیں کیونکہ میری طبیعت ہی نہیں سیٹ ہوتی تھی، اور پھر کیا ہوا کہ میں جو کام کرتی تھی میں حفظ کرتی تھی سر، اور میرا حفظ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا زبردست تھا، اتنا پختہ تھا۔ پہلی بار میں نے حفظ شروع کیا 5 کے بعد تو میرے سے حفظ نہیں ہوتا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا تھا، میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کرونا کے 2 سال کے بعد میں نے دوبارہ حفظ شروع کیا، اور وہ میرا حفظ الحمدللہ اتنا زبردست تھا کہ میں نے 7.5 سپارے کیے تھے، اور میں روزانہ 7.5 سپارے ہی سناتی تھی، اور جیسے سارے جامعہ والوں کو اس بات کے بارے میں پتا تھا۔ پتہ نہیں وہاں سے نظر کا کوئی مسئلہ ہوا یا پتہ نہیں کیسے میری طبیعت بہت زیادہ ڈسٹرب رہنی شروع ہو گئی، اور مجھے کٹس لگنا شروع ہو گئے، اور میرے کپڑے کٹ جاتے تھے، اور اب بھی ایسے ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب میرے کپڑے کٹے پرسوں رات کو، میرے فادر نے مجھے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کپڑے ہیں؟ میں نے ایسے ہی گھر میں ٹراؤزر شرٹ پہنا تھا تو میں نے کہا ہے، میں آپ کو دکھاؤں میرے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ اصل میں اکثر میرے کپڑے کٹتے رہتے ہیں تو وہ کبھی مجھے پیمنٹ دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے نئے کپڑے لیں۔ جب میں جا کر الماری میں نے کھولا ہے، لاک کھولا ہے، تو اندر
कपड़े सारे के सारे कटे पड़े हुए थे। फिर ये होना शुरू हुआ कि मुझे नील बहुत ज़्यादा पड़ते थे और मुझे बाईं टांग में शुरू से दर्द होता है इतना ज़्यादा कि मुझसे चला नहीं जाता। मैं अपनी टांग नहीं हिला पाती हूँ, मुझे बस अजीब तरह का दर्द होता है। कितनी मेडिसिन्स यूज़ कर ली पर कोई फ़र्क नहीं हुआ। अच्छा, बीच में एक बार ऐसा हुआ, अब से तकरीबन 2 ढाई साल पहले, कि मेरी मदर ने कहीं शादी पे जाना था तो वो ज्वेलरी ढूंढ रही थी। मैंने कहा मेरे पास ज्वेलरी पड़ी है, आपके कपड़ों की मैचिंग है, मैं दूँ आपको? उन्होंने कहा दो। जब मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स खोला तो उसमें मेरी एक बहुत पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी, उस पर सुइयां लगी हुई थी और ऊपर कातिल लिखा हुआ था। फिर मेरे मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा धागे निकलते थे, काले धागे, सफ़ेद धागे, मेरे मुंह से कील निकलते थे, इतने ज़्यादा कील निकलते थे। मुझे शीशे की कै आती थी, मुझे प्लास्टिक की चीज़ों की, जो खाली प्लास्टिक होता था, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट, उस की मुझे वॉमिटिंग होती थी। काले कपड़े निकलते थे मेरे अंदर से। फिर चंद दिन बाद मुझे दोबारा वॉमिटिंग हुई और मेरे मुंह से एक मेरी तस्वीर निकली वॉमिटिंग में, उसके ऊपर भी सुइयां लगी थी, कातिल लिखा था और मेरी तस्वीर पे क्रॉस लगा हुआ था। ये वो टाइम था, अब से तकरीबन 2 साल पहले, जब मेरी फैमिली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया, जब उनके सामने सब चीज़ें होना शुरू हुई और मेरे अंदर से सुइयां भी निकलती थी। मैं खाना खा रही होती थी, मेरे आगे से खाना ख़त्म हो जाता था। मैं चाय अपने लिए लेकर आती थी, मेरा कप खाली हो जाता था। मतलब हर चीज़ में तंग करने वाला मामला। अब इस तरह से है कि मैंने तकरीबन 3 माह हुए, मैंने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की है। मेरे साथ इस तरह का मामला है कि मैं अपने मोबाइल पर सूरह बकरा लगाती हूँ, रुकिया लगाती हूँ, मेरा मोबाइल पूरा का पूरा बंद हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरा मोबाइल किसी भी टाइम गुम हो जाता है, फिर कितने कितने दिन गुम रहता है, और जब वापस मुझे मेरा मोबाइल मिलता है तो अल्लाह माफ़ करे, मेरे मोबाइल की सर्च लिस्ट इतनी गंदी और घटिया होती है। अंदर नेटफ्लिक्स होती है, स्पॉटिफाई, तमाशा ऐप और पता नहीं कौन कौन सी ऐप जिनके बारे में मुझे कभी पता भी नहीं। और मेरे मोबाइल में अजीब अजीब तरह की चीज़ें और शोर शराबा और म्यूज़िक और अजीब तरह की चीज़ें मेरे मोबाइल में डाउनलोड हुई हुई होती हैं। इस तरह का मामला है। अब जो करंट इशू है वो इस तरह से है कि मुझे कल भी कट्स लगे। ये मतलब लास्ट टाइम जो चीज़ हुई वो मैं आपको बता रही हूँ, कट्स लगे। अच्छा, बीच में एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं कहीं से दम करवा के आ रही थी, तकरीबन 3 साल पहले की बात है। और मैं गाड़ी में, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि हादसी हुई थी और मेरे जिस्म में बस दर्द थी। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम लेट जाओ। मैं अभी लेटे कोई 2 मिनट हुए होंगे, अचानक गाड़ी का शीशा खुला और किसी ने मुझे मेरे बाजुओं से पकड़कर बाहर फेंका। पहले तो मेरे बाजू घिसटते रहे बाहर सड़क पर, रोड पर, और फिर किसी ने मुझे ऐसे ही बाजुओं से खींचा और बस मुझे गाड़ी से बाहर गिराया। मेरा एक्सीडेंट हो गया। और खैर, जब मैं वापस घर आई, काफ़ी दिन मैं बेड रेस्ट पे रही, और फिर क्या होता था, मेरा जिस्म अकड़ जाता था। हर कोई ये कहता था इसे टेंशन है, इसे ये है। और ज़ाती तौर पे आपको पर्सनली ये बात बताऊं कि मेरी वाकई में मेंटल हेल्थ बेइंतहा डिस्टर्ब हो चुकी है इस चीज़ की वजह से। मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ, वो कहती है ऐसे कैसे होता है, ये सब ये खुद करती है, ये सब ऐसे करती है। या ऐसे होना कि मैंने सारी फैमिली के बीच में बैठे हो ना और मेरे कपड़े कट जाने। ये कितनी एम्बैरेसिंग चीज़ है कि कोई ऐसे मतलब बेलिबास हो जाए इस तरह से। मतलब ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, या मैं किसी के पास नहीं बैठ पाती थी। मेरा दिल करता है कि मैं अंधेरे में रहूं, मुझे बहुत शोर से उलझन होती है, मेरे पास कोई आता है मेरा दिल नहीं करता कोई मुझसे बात करे। मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन मैं कंट्रोल भी करती हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं चीज़ें उठा उठा कर फेंकूँ, मुझसे कुछ किया नहीं जाता। और मेरे कंधों और गर्दन पर इतना बोझ पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा, मुझसे कुछ किया नहीं जाता। बस मैं हर तरह से, जब मैं सब छोड़ देती हूँ, अपना हिफ्ज़ याद करना छोड़ देती हूँ, तफसीर छोड़ देती हूँ, हर तरह की चीज़ छोड़ देती हूँ,
मैं ठीक हो जाती हूँ। इवन मुझे पेंटिंग का शौक है, मैं पेंटिंग भी खाली करनी शुरू करूँ मेरी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है। मैं बुक्स पढ़ना शुरू करूँ मेरी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है कि मैं कोई भी काम क्यों करती हूँ। ये चीज़ ना फिर हासियाँ होनी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलनी, हम तो इसके बहन भाइयों से दूर करते हैं, हम तो इसके बाप के दिल में नफरत डालते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये जीतें देते हैं। फिर इस तरह से होना कि एक बार मैं सोई हुई थी ऐसे रूम में, और उस रूम में आग लग गई। मैं अकेली उस रूम में, सारी खिड़कियां बंद हो गई, सारे दरवाजे बंद हो गए। मैं उससे बहुत मुश्किल से खैर जैसे भी निकली, और आधी रात का टाइम था। और मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने कहा अकेले ही थी ना ये तो कमरे में, तो मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि बंदा खुद भी तो कर ही सकता है काम। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी कि मतलब मैं उस चीज़ पे इतनी ड्रामा में चली जाती थी कि यार मैं एक अज़ियत से ऑलरेडी गुजर रही हूँ, फिर आप क्यों किसी पर इस तरह से बात कर रहे हैं। या मैंने जो अभी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि मेरे कपड़े कट जाते हैं, या ये चीज़ें, मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ इन चीज़ों से। और मेरे ना पीछे रमज़ान की बात है, मैं कोई इलाज कर रही थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें पढ़ने को दी थी और एक वजीफ़ा दिया था। वो मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, और क्या होना कि मुझे जब मैंने पढ़ना मुझे इतने कट लग जाने। और क्या हुआ कि 7वें दिन जब वो अमल कर रहे थे, 7वें दिन मेरे सारे बाल कट गए। पहले मेरे गर्दन तक बाल कटे, आईब्रोज उतरना शुरू हो गई। अगले दिन आईब्रोज भी सारी साफ हो गई और बाकी के बाल भी कट गए। फिर ये होता था कि मेरे 1-1 इंच भी बाल आते थे, मेरे बाल अंदर अंदर से कट जाते थे, अंदर अंदर से जैसे गंज हो जाती थी। मेरे आईब्रोज कितने महीने नहीं आए। तो ये चीज़ें जो मुसलसल चल रही हैं, और ऑब्वियसली घर में एक अजीब तरह का माहौल रहता है, या इस तरह से कि मेरी सिस्टर कहती हैं कि हम इस घर में आते हैं ना, हमारे बच्चों पर असर होता है, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, या मतलब वो ये कहते हैं कि हम इधर आते हैं हमें बेचैनी होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो मुसलसल चल रही हैं। जब मैंने आपके मुतालिक देखा फेसबुक पे, तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे आपके मुतालिक वैसे बताया, तो मैंने कहा मैंने कहीं से अब इलाज नहीं करना, मैंने बड़ी अज़ीज़ें भुगत ली हैं इनकी हाज़ियों की और ये सब चीज़ें। लेकिन कल ऐसी बात हुई तो मतलब अंदाज़ा हुआ कि आप मतलब हासियाँ नहीं करते, और फिर आज भी जैसे आपने बताया, तो मैं सिर्फ इस वजह से आपके हाँ इलाज करवाने के उस पर हुई हूँ कि शुक्र है कोई ऐसी जगह है कि हासियाँ नहीं होती, ये अजियतें नहीं होती। तो बस इस तरह की चीज़ें, और घर का माहौल मुसलसल डिस्टर्बिंग, या इस तरह लड़ाइयाँ झगड़े, या इस तरह की चीखो पुकार, ये चीज़ें चलती हैं। और मैं रात को लेटती हूँ ना, मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। मेरा दिल करता है जो बच्चे रो रहे हैं मैं उनको चुप करवाऊँ, ये क्यों रो रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कि मैंने तकरीबन आज आपकी 8-10 वीडियोस सुनी है, और एक पॉडकास्ट भी देखी है, और कुछ एक वैसे वीडियो थी 10-15 मिनट की, वो भी देखी है। मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आप मुझे कोई वीडियो सजेस्ट कर दें, मतलब कोई ख़ास वीडियो जो मैं ज़रूर देख लूँ आपसे करवाने से पहले ट्रीटमेंट, वो मुझे अगर आप भी कोई सजेस्ट कर दें। वैसे मैंने आज तकरीबन आपकी 10-12 वीडियोस देख ली हैं। जब हाजिरी होती थी तो वो कहते थे कि इसने हमारी माँ के ऊपर गर्म पानी फेंका था। हमारी माँ इसके सिंक जहाँ बर्तन धोते हैं उसमें बैठी हुई थी, इसने वहाँ पर गर्म पानी डाला था, वो जल कर मर गई थी। तो हम इस वजह से इसके पीछे आए हैं। तो ये एक चीज़ थी जो वो हमेशा ही कहता था हाजिरी में ना। और इन सब चीज़ों के अलावा एक ये चीज़ भी है सर कि मेरे बहुत ज़्यादा पैसे गुम होते हैं, बहुत कीमती चीज़ें गुम हो जाती हैं। मैं लॉकर में भी पैसे रखूं जो जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है, और किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता कि मतलब मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मेरे पैसे गायब हो जाते हैं, मेरे पैसे गुम हो जाते हैं, मेरी खाने वाली चीज़ें गुम हो जाती हैं, हर तरह की चीज़ चाहे कोई कीमती चीज़ भी है वो गुम हो जाती है इस तरह से।
تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح علاج کریں گے؟ ویسے میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ سن رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میرا علاج ہو جائے گا یا کیا چیز ہوگی، اور مطلب کس طرح سے ہوگا سارا؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔